Hello students. So, as you all know that mathematics paper has been uploaded by the IIT authorities. It came late last night, so we were busy in preparing its solution, and finally we are able to bring out the solution. You can also see the answer key on our websites, and the video solutions is what that I am going to present now. Overall analysis of the paper we will do it later, but my general hunch was that the paper was a bit lengthier and a few questions were really I will say tougher side. So, probably this was one of the tougher paper in mathematics in over a few years that I have seen. So, that is about the paper, but exactly what are the marks which are relevant out here, that I am going to discuss later on when we will present certain analysis. But today I am going to discuss about the solutions of this paper. You can also look at the answers which are given here, like for example in this question the answer is B. So, you can also refer to the answer, but I am going to present the detailed solution of this. So, let us start with paper 1. तो पेपर 1 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि एक ट्राइंगल की बेसिकली दो साइड्स का हमें इक्वेशन दे रखी थी, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था. तो इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो आप लोगों को पता भी है, जो हम डिस्कस करते हैं क्लास में, कि किसी भी ट्राइंगल में तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर जो है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एनी ऑफ द साइड्स will lie on its circumcircle. मतलब H का रिफ्लेक्शन about the line BC will lie on its circumcircle. H का रिफ्लेक्शन about the line AC will lie on this circumcircle. Similarly, H का रिफ्लेक्शन about the line AB will lie on the circumcircle. So that is what we are going to make use of this. So in this case, the orthocenter is 1,1 and the two lines which are given is x plus y plus 1 equals to 0, which is a line like this, okay, and another is x axis, and the orthocenter is given to you as 1,1. Orthocenter is given to you as 1,1. Okay. So, the reflection of 1,1 about the x-axis we know is nothing but one comma minus 1. Similarly, the reflection of 1,1 about the line x plus y plus 1 equals to 0, that you can work out comes out to be minus 2 comma minus 2. So, we need to basically find out a circle, and similarly this one point of the vertex which is minus 1 comma 0 is also a point which is the vertex of the triangle. So, basically we want to find a circle which passes through these 3 points, okay, which passes through these 3 points. Okay. So, you can try to work out that circle, और अल्टरनेटिवली आई कैन जस्ट चेक विद द आंसर्स. लाइक 3 पॉइंट से सर्किल के पास करने की इक्वेशन तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला यहाँ पर ऑप्शन बी ही है. तो मैं वो नहीं जा रहा हूँ कि 3 पॉइंट से कैसे सर्किल की इक्वेशन निकालेंगे, दैट आई नो दैट यू आर ऑल केपेबल ऑफ. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. Okay, so this was question number 2 based on area under the curves and basically area of a quadrilateral. So it was certain inequalities are given and we have to find out the area enclosed by this region. So you can draw the diagram of this. This is x is varying from 0 to 9 by 4. So let us say this is 0, this is 9 by 4. Okay, y varies from 0 to 1. So let us say this is 1, and x plus y equal to 2. X plus y equal to 2 will be a line something like this, and x plus y greater than equal to 2 will represent the region on that part. Okay. Similarly, x less than 9 by 4 will be represented by this region here. Okay. Y less than 1 between 0 and 1 will be represented by certain region here. And you have one more, is that x is greater than or equal to 3y. So if I plot that line, then it will pass through 0 comma 0, and at x equal to 9 by 4 y is 3 by 4. So that will be a line, like this. Okay.
So overall, and x is greater than equal to 3y. So overall, if we look at this region, then this region will be given by this. This is the area that we need to find out. This is the area that we need to find out. So we can work out this one, like for example, the coordinate of this point. The coordinate of this point will be what? 9 by 4 comma 3 by 4. Okay. This is obviously 2 comma 0. This is 9 by 4 comma 0. And this point, which is the intersection of x plus y equal to 2 and x equal to 3y, will be nothing but y equals to half and x equals to 3 by 2. So 3 by 2 comma half will be this point, and we need to find out the area of this quadrilateral. So we can try to work it out by finding out the area of this triangle and this triangle, the other triangle. So you can try to work out using the determinants the area of this triangle, and the area of this triangle is simply you can work out by half base into height. If you find out the area of the two, then it comes out to be 11 upon 32. So that is the right answer. The answer to this will be A. Okay. So this was one of the problem in probability question number 3, which I will say that was on a tougher side as far as the time frame was concerned in the paper, and the various ifs and buts which were given. But nevertheless, as we have mentioned, the answer to this will be 1 by 5. Now how do we get this answer? ठीक है, तो ये कुछ चीजें लिखी हुई है वो आपने समझ लिया होगा कि E1, F1, G1 दिए हुए हैं, S1 is taking 2 elements from E1, ठीक है, and फिर E2 is E1 minus S1 and F2 equals to F1 union S1, ये सब कंडीशंस वगैरह दे रखी हैं, और फाइनली ये दिया हुआ है कि E1 इक्वल टू E3 अगर है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P is the conditional probability of the event S1 is 1,2, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, वो क्या होगी? तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि S1 की क्या क्या वैल्यूज पे E1 इक्वल टू E3 हो सकता है, और उसमें से 1,2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट विल बी अ फेवरेबल सिचुएशन डिवाइडेड बाय द टोटल सिचुएशन दैट विल हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि अगर इसको मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसमें देखें तो फॉर एग्जांपल अगर S1 इज 1,2 इज दिस हियर, तो E2 क्या होगा? E2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस S1 विल बी नथिंग बट इक्वल टू 3. ठीक है, और S3 को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि E3 इक्वल टू E1 होना है. ठीक है, E1 वॉज 1 2 3, E1 इज 1 2 3 और E1 E3 इज E2 यूनियन S3. ठीक है, तो इसका मतलब S3 को क्या होना पड़ेगा? दिस विल इंप्लाई दैट S3 शुड बी इक्वल टू 1,2, यानी कि हम यहां देख रहे हैं कि S1 और S3 जो है वो सेम होने चाहिए. तो फॉर E1 इक्वल टू E3 वी शुड हैव S1 शुड बी इक्वल टू S3. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वील हैव टू वर्क आउट. ठीक है, अब यहां पर हम अलग अलग केस बनाते हैं कि यदि S1 इज 1,2, S1 इज 1,2, लेट मी राइट विद अ डिफरेंट कलर. ठीक है, तो S1 अगर 1,2 है तो व्हाट इज E2 विल बिकम E2 will be equal to E1 minus S1, so that will be equal to 3. F2 जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? F2 will be equal to F1 union S1, तो that will be 1 2 3 4. ठीक है, F2 will be 1 2 3 4, और जो G2 है, G2 is G1 union S2. तो यहां पर आप देखो कि अगर मैं S1 S3 को भी 1 2 चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि S2 जो इसमें से 2 एलिमेंट लें उसमें 1 आना जरूरी हो, क्योंकि फिर G2 जो बनेगा वो G1 यूनियन S2 बनेगा. तो इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, तो एक तो 1,2 आने की, S1 को 1,2 लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 होगी. ठीक है, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि F2 से हम 1 लें. ठीक है, तो 1 अगर हम लेना चाहते हैं, 2 एलिमेंट लेने हैं, उसमें से एक 1 लेना ही लेना है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल बी 3/6. ठीक है, और सपोज हमने F2 से कुछ भी ले लिया, 1, समथिंग ले लिया, तो G2 विल बिकम इक्वल टू 1 2 3 4 5, और उसमें से हमें वो जो G2 में से हमारे को S3 निकालना है. ठीक है, और S3 हम चाहते हैं कि वो 1 2 हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं इसमें से 2 एलिमेंट निकालूंगा, वो 1 2 आएंगे, तो यू कैन सी दैट दैट विल बी इक्वल टू 2C2 अपॉन 5C2, 2C2 अपॉन 5C2 विच इज इक्वल टू 1/10. सो दिस इज 1/3 इंटू 3/6 इंटू 1/10.
तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन S1 इज 1,2। लेकिन और किस किस तरह से E1 इक्वल टू E3 हो सकता है? तो अगर मैं S1 को सपोज करूं कि 1,3 ले लूं, ठीक है, तो अगेन S3 को भी 1,3 होना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर E2 विल बी इक्वल टू 2, F2 विच इज नथिंग बट F1 यूनियन S1, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 134, F2 विल बी 134, और मुझे इसमें से S2 लेना है तो मुझे 1 तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, S2 की प्रोबेबिलिटी के वो 1 इसमें से आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि दैट विल बी इक्वल टू कि मुझे 1 तो लेना ही लेना है और एक और एलिमेंट लेना है, तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3, ठीक है, कि S2 में 1 आए, और अगर S2 में 1 आ गया तो अगेन इन दिस केस G2 विल बिकम 1 2 3 4 5, और उसमें से 1 2 हमारे को 1 3 चाहिए, तो 1 3 आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि S3 को हम चाहते हैं कि 1 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी अगेन 1/10, ठीक है, तो दैट विल बी द सिचुएशन व्हेन S1 इज 1,3। नाउ लेट अस से कि इफ S1 इज 2,3, ठीक है, S1 इज 2,3, तो इसका मतलब मैं S3 को भी चाहूंगा कि वो 2,3 हो। इज दिस क्लियर? नाउ इस केस में E2 की वैल्यू हो जाएगी 1, इज दिस क्लियर? E2 विल बी 1, F2 इज F1 यूनियन S1, तो वो क्या हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब दो केसेस यहां पर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब S1 को 2/3 लेने, इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है ही है, ठीक है, और अब यहां पर दो केसेस हो सकते हैं कि अगर मैं F2 से दो एलिमेंट लूं जो कि S2 है, वो 1 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट S2 कंटेन्स 1, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/3, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/3, और अगर S2 1 लिया तो G2 विल बी 1 2 3 4 5, लेकिन हम उसमें से 2 3 चाहते हैं, तो दैट विल बी 1/10, सो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/10, या ये भी हो सकता है कि S2 डज नॉट कंटेन 1, ठीक है, तो 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी कि S2 डू नॉट कंटेन 1, ठीक है, तो S2 1 नहीं कंटेन करे, इसका मतलब S2 जो है वो 2 3 3 4 या 1, ये हो सकता है 2 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगेन विल बी 1/2, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट S2 कंटेन्स 1 इज 1/2, एंड दिस विल बी आल्सो 1/3 इंटू 1/2, और अगर 2 3 या 2 4 वगैरह आ रहा है तो उस केस में G1 और G2 सेम होंगे, और उस केस में अगर मैं 2 3 लेना चाहता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, ठीक है, क्योंकि 2 3 4 5 ही G2 होगा, और उसमें से हमें दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, वो 2 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो यहां पर जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा कि दिस विल बी आवर फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, एंड दिस एंड दिस विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो यू विल हैव 1/3 का तो फैक्टर कट ही जाएगा, खैर यहां पर, तो 3/6 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाई 3/6 इंटू 1/10 प्लस 2/3 इंटू 1/10 प्लस 1/2 इंटू 1/10 एंड प्लस 1/2 इंटू 1/6, दिस विल बी द रिक्वायर्ड चांस। और अगर हम इसको किससे 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 प्लस 4 प्लस 3 एंड प्लस 5 ये बचेगा, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 3/15 या 1/5, which is the answer given as A. So therefore the correct answer of this will be A. It is a slightly involved problem, you will have to think about it what I have done here, but मैंने basically ये identify करा है कि S1 should be equal to S3, पहली चीज तो ये है, वो होना चाहिए, और S1 के अलग अलग केसेस पे अब मैं देख रहा हूं कि कब S3 की वैल्यू सेम आ सकती है, अंडर व्हाट कंडीशंस, तो उसको करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे थे, और उसके हिसाब से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है कि S1 is 1,2 given that E1 equal to E3 will be equal to 1/5. So correct answer of this will be A. Okay, so this was question number 4 regarding complex numbers, and the answer for this is C. Now how does this answer comes is that you are given that Z1 is e raised to power iota theta 1. So Z1 will lie on a circle of centered at 0,0 and radius is 1. So let us say this is Z1 e की power iota theta 1. Now Z2 is Z1 e की power iota theta 2. According to ZK that relation जो दिया हुआ है उससे ये आएगा कि ये e की power iota theta 2 है, जो कि हम जानते हैं कि that will lie at an angle of theta 2 from Z1 and this is Z2.
ओके, एंड सिमिलरली दिस इज थीटा 1, ओके। तो इसी तरह से Z3 Z4 वगैरह ये डिफाइन है, जैसे Z3 जो है वो इससे थीटा 3 एंगल पर होगा, दिस विल बी एट एन एंगल ऑफ थीटा 3 एंड सो ऑन। एंड इफ यू लुक एट Z10 then Z10 will be what will, like Z2 is equal to this, Z3 equals to Z2 into e raised to power iota theta 3, okay। so basically Z3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, that will become e की पावर iota theta 1 plus theta 2 plus theta 3। इसी तरह से Z10 जो है वो e raised to power iota 2 pi हो जाएगा, तो Z10 will lie here, Z10 will lie here। Now we are asked that what is mod Z2 minus Z1, तो mod Z2 minus Z1 will represent this distance, okay, the straight line distance, and we know that the distance between 2 points on a circle, the chord, is always less than the length of arc। So in this case what we can do is that we can say that mod of Z2 minus Z1 will be less than, because they are given that the angles are positive, so Z1 Z2 में से कोई बराबर भी नहीं हो सकता, एंगल पॉजिटिवली वैल्यू एंगल है, तो Z2 minus Z1 will be less than r theta, so that will be equal to theta 2। Likewise mod of Z3 minus Z2 will be less than theta 3, एंड इस तरीके से अगर आप सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, mod of Z1 minus Z10 will be less than theta 1, एंड अगर हम इसी तरह से सबको ऐड कर दें तो यू कैन सी दैट हियर what will I get is that the sum mod of Z2 minus Z1 plus mod of Z3 minus Z2, okay, and so on will be less than theta 1 plus theta 2 dash 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 up to theta 10, which is equal to 2 pi. So that will give you the answer to this question, that is the option number, that P is true. Likewise if you look at Q, then in that case what will we get? In case of Q, look at this, let me write it here only, that mod of Z2 minus Z1 square is nothing but equal to mod of Z2 minus Z1 into mod of Z2 plus Z1, okay, mod of Z2 plus Z1. So what that will become is equal to mod of this will be less than mod of Z2 minus Z1 and into 2, because mod of Z1 plus Z2 will always be less than or equal to 2, okay। So from there, and since we know that mod of Z2 minus Z1, mod of Z3 minus Z2 is less than or equal to 2 pi, so if you add all this summation which is given in Q, then that will be less than 2 into 2 pi, and therefore there will be less than 4 pi. So therefore in this case both P as well as Q are correct, and the correct answer will be C, okay। So this was a problem of probability which was relatively easier as compared to the problem number 3, which you have seen that it was a bit lengthier, but this problem is relatively easier, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चंस थे इसमें 5 और 6, तो you can read the question that S is the set of 1 2 3 up to 100 and P1 is the probability that the maximum of selected number is at least 81, okay। So P1 कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहीं पर ही निकाल लेता हूँ, मैं 5th 6th के आंसर पे आ जाता हूँ, पर मैक्सिमम ऑफ सेलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 81, तो P1 हम इससे कर सकते हैं कि इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी that all three selected numbers are less than or equal to 80, ठीक है। अगर हम तीनों selected number 80 से कम वाले केस subtract कर दें तो we'll get that at least one is greater than 80, and that is what that the मैक्सिमम नंबर इज एटलीस्ट 81, तो अगर कम से कम एक 80 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम नंबर जो है वो कम से कम 81 होगा। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 80 इफ आई एम सेलेक्टिंग विद रिप्लेसमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू 80 by 100 का क्यूब, which is nothing but 1 minus what that will become is 64 upon 125, or we can see it is nothing but 61 upon 125. So this is how we will get the value of P1. Likewise P2, अगर आप यहाँ पर देखें तो P2 के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, is that it is the probability that minimum of selected number is at most 40. तो minimum of the selected number is at most 40, मतलब minimum जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकता है या 40 से कम हो सकता है। तो इसमें अगर हम 1 minus probability of all three greater than or equal to 41,
ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ऑल थ्री नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 41, तो हमारे पास ये आ जाएगा कम से कम एक नंबर 40 या 40 से कम है, एंड देयरफॉर मिनिमम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर विल बी एट मोस्ट 40. तो वो चीज यहां पर वैलिड हो जाएगी, एंड दिस यू कैन वर्क आउट विल बी नथिंग बट 1 माइनस 60 अपॉन 100 का क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू 98 अपॉन 125. Okay, so from here if you look at this question number 5 and 6, then you can work out now that P1 we had got is 61 upon 125. P1 is equal to 61 upon 125, and therefore 625 by 4 into P1 will be nothing but 305 upon 4, which is equal to 76.25. Likewise, if you work out for P2, we had seen that P2 is equal to 98 upon 125, and if you work out the value of 125 upon 4 P2, then that will come out to be 98 upon 4, which is comes out to be 24.50. So that will be the answer to question number 5 and 6. Okay, so matrix, as you all know, is an important chapter. We have been telling you in the class also that matrix के questions हमेशा आते हैं, तो यहाँ पे भी 2 questions matrix के आए, और भी questions आए matrix के. It's an important chapter as I always mention in the class also. तो इसमें क्या था कि अल्फा बीटा गामा are real numbers which satisfy such that the system of linear equation is consistent. Consistent means that they have a solution. Now यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखने में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, ठीक है. तो इन दिस केस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज 0, ओके, एंड इफ इट हैज टू बी कंसिस्टेंट देन वी नो दैट Ax इक्वल टू B, ठीक है, will be consistent if mod A is 0 if adjoint A into B equals to 0. Okay, that is a condition that adjoint A into B is should be 0. अगर वो नॉन जीरो हो गया तो फिर then what you will have is that it will become inconsistent. Now adjoint A into B, तो how can we find out? तो यहाँ पर A जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो A in this case is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and if you find adjoint A into B, so what is adjoint A in this case will be, you can try to work out that will come out to be the cofactor of these elements written in the transpose form. So what that will become is -3, okay, and in 2 it is what 36 minus 42, so that is -6, so 6 minus 3. Similarly for 4, okay, 4 is 18 minus 24, so that will become 6. This is, you can see that this will come out to be -12 and this will come out to be 6, and similarly for 7 you can try to work out that will be 12 minus, so again this is -3, 6 minus 3, you can see that this will be the value of adjoint A, and B is the remaining terms which were there like alpha, beta and gamma minus 1, okay, alpha, beta and gamma minus 1. So this should be equal to 0, adjoint A into B, this should be equal to 0, and if you work it out then it will give you that alpha minus 2 beta plus gamma minus 1 should be equal to 0. So that is the condition that we will get on alpha, beta, gamma for this system of equation to be consistent. Now let us come to the questions, the questions which are being asked in this. So first is the value of mod m. So if you work out the mod m, okay, so m is given to you as this matrix, m was given to you as this matrix. If you find out the mod of m here, okay, so what that will become is alpha minus 2 beta, okay, plus gamma, okay. So this is mod of m, and according to the condition which we have found out that alpha minus 2 beta plus gamma is nothing but equal to 1. So therefore mod m, which is equal to alpha minus 2 beta plus gamma, the value of that will come out equal to 1. So that will give you the answer to this question number 7. And if you look at question number 8, what was question number 8 is that the value of D, okay, and what was D was mentioned if you look at that problem, okay. So D क्या दिया हुआ था, D is the square of the distance, P is the plane containing all those point alpha, beta, gamma. So P is the plane basically which represent the locus of alpha, beta, gamma,
एंड द प्लेन P, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन आया है, तो प्लेन P इज नथिंग बट x माइनस 2y प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसका डिस्टेंस हमें 0 1 0 से निकालना है, जो कि इन्होंने इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन, द प्लेन दैट वी हैव फाउंड आउट, which is x minus 2y plus z minus 1 equals to 0, the distance of that plane from 0 1 0. So let me write here only कि x minus 2y plus z equals to 1 का डिस्टेंस हमें निकालना है 0 1 0 से, तो ये आप निकाल सकते हो, दैट विल बिकम माइनस 3 अपॉन रूट 6. दिस इज द डिस्टेंस एंड d इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो d, कैपिटल D इज नथिंग बट d स्क्वायर, विच यू कैन वर्क आउट, इज इक्वल टू 9 अपॉन 6, which is 1.50, and that was the answer that we had got in question number 8, that 1.50. So I hope that clears this particular question. Okay, so now let us come to question number 9th and 10th. Okay, they were based on coordinate geometry, और basically वहाँ पर दो lines दे रखी थी, L1 L2 defined by, you have the question with you, L1 is this line, L2 is this line, and C is the locus of the point P such that the product of distance P from L1 and L2 is lambda square, और लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1 यहाँ पर ऐसा मीट करती है, कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, उसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए थे. ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज, जो भी इन्होंने पूछा है वो हम बाद में देखेंगे. तो यहाँ पर ये दो लाइन्स हैं. ओके, मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ओके यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन. So there are two lines. Okay, one is x root 2 plus y equals to 1. So that line you can see that y equals to 1 और x equal to 1 upon root 2 यहाँ पर मीट करेगी, तो वो लाइन कुछ इस तरह की रहेगी, और दूसरी लाइन जो है वो इस तरह की यहाँ पर रहेगी. ठीक है, दिस इज 0,1, दिस इज 1 by root 2, 0, and this is minus 1 by root 2, 0. Okay, ठीक है. नाउ for a fixed constant lambda, let P be the point. तो P ये कोई पॉइंट है, सपोज करो P is let us say this point, इसका डिस्टेंस इससे और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका प्रोडक्ट इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर है. तो अगर ये P H, K ले लू मैं, P is H, K, okay, then what you will have is that the distance of P from the first line will be h root 2 plus k minus 1 upon root 3 का मॉड, और सिमिलरली P का डिस्टेंस दूसरी लाइन से क्या होगा, h root 2 minus k plus 1 upon root 3 का मॉड, and that is given to you as equal to lambda square. That is given to you as lambda square. तो अगर हम इसको h और k को x और y से रिप्लेस कर दें, तो you can see that the locus will come out to be what, 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का मॉड इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड लोकस. नाउ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1, इस कर्व को, ये C है, ये कर्व C है जिसका लोकस हमने निकाला है, और y इक्वल टू 2x प्लस 1 इसको दो पॉइंट R और S पे मीट करती है. ठीक है, तो अगर मैं इसमें y इक्वल टू 2x प्लस 1 के साथ सॉल्व करूं, ठीक है, इफ आई पुट y इक्वल टू 2x प्लस 1 हियर, then what will I get is that 2x square upon 3 का मॉड इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और इससे हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो होगी प्लस माइनस रूट 3 by 2 लैम्डा. ओके, x की वैल्यू ये आएगी, यानी कि r और s के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर हम यहां पर r का कोऑर्डिनेट निकालें तो r का कोऑर्डिनेट विल बी, x कोऑर्डिनेट विल बी रूट 3 by 2 लैम्डा, और y कोऑर्डिनेट हम इस लाइन की इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उन दोनों को हमने सॉल्व किया है. तो y का कोऑर्डिनेट अगर हम यहां पर देखें तो वो आएगा रूट 6 लैम्डा प्लस 1. ओके, सिमिलरली s का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो वो आएगा माइनस रूट 3 by 2 लैम्डा, दैट इज द x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट विल बी नथिंग बट 1 माइनस रूट 6 लैम्डा. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 270. तो इनके बीच का डिस्टेंस आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो कि दैट विल बी रूट 6 लैम्डा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2 रूट 6 लैम्डा
का होल स्क्वायर का अंडर रूट is equal to under root of 270. Okay, and if you compare the two, this will give you that 30 lambda square is equal to 270, or we get that lambda square is equal to 9. Okay, so let me come back to the question. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा था उन्होंने कि इसमें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर विल बी 9. दैट वाज द वन ऑफ द क्वेश्चन. Another question that has been asked was that what is the value of d, और d क्या उन्होंने डिफाइन किया था, d उन्होंने डिफाइन किया था कि d इज द डिस्टेंस बिटवीन r डैश एंड s डैश. ठीक है, और r डैश s डैश क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ rs मीटिंग c. तो ये c कर्व क्या है, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, लैम्डा स्क्वायर इज 9. तो व्हाट इज दिस कर्व c? ओके, तो इसको अगर हम यहां पर देखें c कर्व क्या होगा, तो द कर्व c वाज 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 9. मॉड ऑफ दिस इज द कर्व c. ओके, दिस इज क्लियर. तो यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं कि x स्क्वायर अपॉन 27/2 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो दीज आर नथिंग बट द हाइपरबोलास. ठीक है, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर आप इनको देखें यहां पर तो सेंटर ऑफ दिस विल बी 0,1. ठीक है, एंड दोज हाइपरबोलास विल बी लाइक दिस. ठीक है, वन काइंड ऑफ हाइपरबोलास विल बी लाइक दिस, एंड सिमिलरली यू विल हैव अनदर काइंड ऑफ हाइपरबोलास लाइक दिस. नाउ ये 0,1 है. y इक्वल टू 2x प्लस 1 लाइन जो है वो यहां से पास हुई थी, y इक्वल टू 2x प्लस 1 ये लाइन होगी. ठीक है, और वो इसको r और s पे मीट कर रही थी, जिससे कि हमने वो ज्योमेट्री निकाली कि r s के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था और उससे लैम्डा स्क्वायर निकाला. ना उन्होंने ये कहा है दूसरा कि इसके परपेंडिकुलर लाइन 0,1 ही इसका मिड पॉइंट होगा. वो आप देख सकते हो, r और s के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर वर्कआउट किए थे कि r और s के कोऑर्डिनेट अगर आप इनका मिड पॉइंट निकालो तो वो आएगा 0,1. ओके, तो 0,1 इसका मिड पॉइंट है और इसके परपेंडिकुलर लाइन वो मीट कर रही है r डैश और s डैश पे. ठीक है, तो हमें वो निकालना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ r डैश s डैश. तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर लाइन टू y इक्वल टू 2x प्लस 1, दैट यू कैन इजीली वर्क आउट दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस x/2 प्लस 1. ठीक है, और इसको और हम कर्व c को सॉल्व करें. ठीक है, इसको और कर्व c को सॉल्व करें तो व्हाट विल आई गेट इज क्या मिलेगा, अगर हम माइनस x/2 प्लस 1 उसमें रख दें तो विल गेट 7x स्क्वायर बाई 4 का मॉड इक्वल्स टू 27. यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अगर आप इसको वर्कआउट करो तो ये आएगा 6√3/7 विद अ प्लस माइनस साइन. ठीक है, तो यानी कि r डैश और s डैश के कोऑर्डिनेट हमारे को मिल गए कि ये r डैश का कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल इन दिस केस विल बिकम लाइक, इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो माइनस 6√3/7 कॉमा, क्योंकि वो इस पे लाई कर रहा है. ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट उसका कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 3√3/7 प्लस 1. सिमिलरली h डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 6√3/7 और y कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 3√3/7. और इनके बीच का डिस्टेंस इस r डैश h डैश के बीच का डिस्टेंस अगर आप वर्कआउट करो तो r डैश h डैश विल बी नथिंग बट 144 इंटू 3/7 एंड प्लस 36 इंटू 3/7 का अंडर रूट. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा था कि वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर और d, और d जो था वो बेसिकली d इज इन दिस केस इज r डैश h डैश का होल स्क्वायर. जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था d इज नथिंग बट r डैश h डैश का स्क्वायर. ओके, हाँ, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन r डैश एंड h डैश. तो इफ यू वर्क आउट फ्रॉम देयर, ओके, r डैश h डैश का स्क्वायर, तो हमने ये देख लिया कि r डैश h डैश is this, which is nothing but under root of what that will become is 180 into 3/7. Okay, so that will become 540 upon 7. So therefore the answer to this question will be d is nothing but 540 divided by 7, which is equal to 7. Okay, 7.1 and 4, 77.14, and that is the answer that we have got for question number 10th.
Okay, so we had come again to one more question of matrix. Basically, this question was multiple choice question. Okay, तो ये मैट्रिक्स में इसके जैसे कि आंसर दिए हुए हैं A, B और D हैं. तो let us discuss this question. तो Q is a there is a 3x3 मैट्रिक्स एंड मॉड M ये डिनोट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ M, वो हम जानते ही हैं. Q is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ये हमारे को बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे. तो लेट अस इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट वन बाय वन, है ना. अगेन लेट मी रिड्यूस दिस एज यू हैव ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद यू. तो आई विल गो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दैट. ओके, सो यहां पर अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि F इक्वल्स टू PEP, ये सही है या नहीं है. ठीक है, F इक्वल्स टू PEP. तो लेट अस ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज PE. तो हम जानते हैं एवरी रो ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू प्री मल्टीप्लीकेशन विद एलिमेंट्री मैट्रिक्स, विद सम एलिमेंट्री मैट्रिक्स. यहां पर अगर आप देखो तो P जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, तो P इज नथिंग बट R2 एंड R3 आर इंटरचेंज. तो P की वैल्यू जो होगी वो आप देख सकते हो कि बेसिकली मैट्रिक्स में रो 2 और रो 3 इंटरचेंज हो जाएगी. तो वो हो जाएगा 1 2 3 8 13 18 एंड 2 3 4. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ PE, जो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो. और अगर मैं इसको P से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फर्दर, ठीक है, ये मैट्रिक्स को अगर मैं P से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंगली. और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो P क्या कर रहा है कि C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा है. ठीक है, अगर आप देखो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में C2 और C3 को इंटरचेंज करें तो हमें P मिल जाएगा. तो ऐसी तरह से PEP जो है वो इस मैट्रिक्स में क्या करेगा कि इसका कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देगा. देयरफॉर PEP विल बिकम 1 8 2 3 18 4 एंड 2 13 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ PEP. और अगर आप देखो तो दिस इज सेम एज F. सो देयरफॉर F इक्वल टू PEP जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो सही है. और P स्क्वायर को अगर आप देखो तो P स्क्वायर यू कैन ट्राई टू वर्क इट आउट, दैट विल कम आउट टू बी बेसिकली P स्क्वायर क्या करेगा कि एक तरह से P पर हम उसके जो रोज हैं, है ना, P इज दिस मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0. और अगर मैं इसको P से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बेसिकली क्या होगा कि इसका रो 2 और रो 3 इंटरचेंज हो जाएगा. और रो 2 और रो 3 इंटरचेंज अगर होता है तो दिस विल बिकम नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो P स्क्वायर इक्वल टू I इज ऑल्सो करेक्ट. तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि और क्या ऑप्शन यहां पर सही हो सकते हैं तो दूसरा दिया है EQ प्लस PFQ इनवर्स. ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू EQ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ PFQ इनवर्स. सो लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड को देखें तो PFQ इनवर्स को मैं चेक करता हूं. तो PFQ इनवर्स क्या होगा. ओके, तो F हमें मिल चुका है कि PEP है. तो दिस विल बी इक्वल टू P इंटू PEP Q इनवर्स. ओके, एंड you can see that P square is I. Okay, P square is I and therefore this will be equal to EPQ inverse. ठीक है, PFQ inverse is EPQ inverse. Is that clear? और अगर मैं EQ प्लस PFQ inverse देखूं, ठीक है, तो उसमें E कॉमन ले सकता हूं एंड आई कैन राइट इट एज Q प्लस PQ इनवर्स. ठीक है, क्योंकि PFQ इनवर्स की वैल्यू हम EPQ इनवर्स लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा. और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ठीक है, इफ आई फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मॉड ऑफ EQ प्लस PFQ इनवर्स, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0 बिकॉज मॉड ऑफ E इज 0. दैट यू कैन वर्क आउट कि अगर हम मॉड ऑफ E देखें, ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं इफ आई अप्लाई C2 माइनस C1 तो वो आ जाएगा 115 और C3 माइनस C2 करूंगा वो भी आ जाएगा 115 एंड देयरफॉर टू आइडेंटिकल कॉलम्स आर देयर एंड द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ E विल कम आउट टू बी 0. वो आप चेक कर सकते हो. तो इसमें B में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 है और RHS को अगर आप वर्कआउट करो तो RHS भी 0 आ जाएगी क्योंकि मॉड ऑफ EQ इज 0 बिकॉज इट इज मॉड E इंटू मॉड Q. और मॉड ऑफ PFQ इनवर्स हमने देख लिया कि वो EPQ इनवर्स के बराबर है. तो मॉड ऑफ PFQ इनवर्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0. सो देयरफॉर B में दोनों साइड 0 और 0 हैं एंड देयरफॉर B ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट बिकॉज 0 इक्वल्स टू 0. सो B इज आल्सो करेक्ट इन दिस केस. नाउ C में अगर आप देखो, ठीक है, तो C में मॉड ऑफ EF विल बी 0. ठीक है, और EF क्यूब भी मॉड ऑफ EF का होल क्यूब होगा, वो भी 0 होगा. एंड 0 ग्रेटर देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स.
नो, जीरो ग्रेटर देन जीरो इज नॉट ट्रू। जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता तो वो सही होता, तो इसलिए सी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, सी इज रॉन्ग, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ईपी। ओके, तो पी इनवर्स ईपी क्या है यहां पर, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूं तो यहां पर लेट मी पी इनवर्स ईपी है ना, ये हमें देखना है यहां पर पी इनवर्स ईपी है ना। मैं इसको इधर की तरफ सॉल्व कर लेता हूं, है ना। पी इनवर्स ईपी क्या होगा, ठीक है, पी इनवर्स ईपी प्लस एफ। तो पी इनवर्स ईपी क्या होगा, लुक एट दिस, वी नो दैट पी स्क्वायर इक्वल टू आई है, ठीक है। तो इससे हमारे को मिल जाएगा कि P इक्वल टू पी इनवर्स है, एंड देयरफॉर इफ आई पुट P इनवर्स एज P हियर, दिस विल कम आउट टू बी PEP, which from the option 1 we have got is equal to F. So therefore the sum of the diagonal elements of this is nothing but F plus F, यानी कि 2F के diagonal elements है। इसी तरह से P इनवर्स EP को अगर आप सॉल्व करोगे, सेकेंड वाला जो है E प्लस, वो E प्लस P इनवर्स FP है, सॉरी वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, P इनवर्स FP है, ठीक है। तो P इनवर्स FP को हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं कि F हमने देख लिया कि F इज PEP, ओके। तो मैं यहां पर इसको यहां कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा E प्लस P इनवर्स F is PEP from the first option, PEP and into P, and P inverse P is I, P square is also I, तो this is 2E। तो अगर हम D ऑप्शन सही मार्क करते हैं तो बेसिकली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ 2F शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ 2E। नाउ यहां पर अगर आप देखो तो E के डायगोनल एलिमेंट्स का सम 22 आ रहा है, F के डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी 22 आ रहा है, इसलिए 2E और 2F के डायगोनल एलिमेंट्स का सम सेम होगा। तो देयरफॉर D ऑप्शन विल आल्सो बी करेक्ट, एंड द राइट आंसर फॉर दिस विल बी A, B and D। ओके, सो दिस वाज अगेन अ वेरी कन्वेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है। F में इसमें तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम इसके काफी सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो Fx ये दिया हुआ है और आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर यहाँ पर जीरो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होता है तो फिर उन पॉइंट पर वो एक्सट्रीम इनफाइनाइट वगैरह पर जाता है, ठीक है। तो यहां पर F की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के इंटरवल निकालने, तो हम इसमें क्या करेंगे कि विल ट्राई टू फाइंड आउट F डैश एक्स, ओके। तो F डैश एक्स अगर आप वर्कआउट करोगे इसे, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इट विल बिकम डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और अगर आप उसको जीरो देखो, एफ डैश एक्स कहां पर जीरो हो रहा है, मैं वो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यू विल फाइंड दैट इट इज जीरो एट एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस 4, ओके। तो अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो 0 पर और माइनस 4 पर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा इन्फिनिटी पर आप देख सकते हो इसकी लिमिट 1 जाएगी और माइनस इन्फिनिटी पर भी वो 1 पे जाएगा। 0 पर इसकी वैल्यू यू कैन सी इज माइनस 3/2 और माइनस 4 पर इसकी वैल्यू अगर हम वर्कआउट करें तो दैट विल कम आउट टू बी व्हाट 16 प्लस 12 माइनस 6, so 16 प्लस 6 22 एंड नीचे में कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 12। तो 22 अपॉन 12 या मैं ये कहूंगा 11 अपॉन 6, ओके 11 अपॉन 6। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं और क्योंकि 1 पर ये इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है तो यू कैन सी दैट इट्स ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। माइनस 4 पे इसकी वैल्यू 11/6 आ रही है, 0 पर इसकी वैल्यू माइनस 3/2 आएगी और इन्फिनिटी पर ये अगेन 1 पर अप्रोच करेगा। तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ दिस फंक्शन विल हैव, and from here you can easily work out the answers. I am not going to this, you can see that F is decreasing in minus 2 to minus 1, F is increasing in 1 to 2 and F is on to, no F is not on to because R to R दिया हुआ है, तो F is definitely not on to, and range is minus 3/2 to 11/6 जो कि इन्होंने minus 3/2 to 2 दिया हुआ है, तो वो गलत है। तो therefore answer of this will be A and B, okay। So this was again a problem of probability, तो you can see that probability और matrices के ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था यहाँ पर, और इसमें EFG 3 इवेंट दिए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ E, F और G दे रखी है और इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G के बारे में दिया हुआ है, एंड यू आर आस्क्ड टू आंसर द वेरियस मल्टीपल ऑप्शंस। तो हम यहाँ पर इनको इवेल्युएट करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जैसे मैं इसको चेक करूँ ए ऑप्शन को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट, ये आप देख सकते हो कि दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ठीक है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ इसकी हमारे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक है।
आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 1/8 है, मतलब 12.5% है, और उसकी 1/6 है, मतलब 16.6% है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू इज व्हाट पीई विच इज 1/8। ठीक है, तो देयरफॉर दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1/8। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ मैक्सिमम ये हो सकता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर, वो हमें दिया हुआ है 1/10, एंड इफ यू वर्क आउट दिस वैल्यू दिस कम्स आउट टू बी 1/40। तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/40। सिमिलरली बी की अगर हम बात करें तो बी इज ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ओके, तो इसमें अगेन एफ इंटरसेक्शन जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इज 1/6, एंड देयरफॉर दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10 विच यू कैन अगेन वर्क आउट इज व्हाट 2/30 या 1/15। तो दिस विल बी 1/15, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट द सी ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, ठीक है, मैं यहीं पर ही कर देता हूं इसको। तो सी ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, ये आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू पीई प्लस पीएफ प्लस पीजी। ठीक है, उससे भी छोटा होगा, ठीक है, पर हम अगर देखे जाए तो इससे तो छोटा होगा ही होगा, क्योंकि ई एफ और जी अगर वो टोटली, हालांकि यहां पर ओवरलैप है तो एक्चुअली में उससे छोटा होगा, लेकिन अगर हम इसकी भी वैल्यू निकालें, ठीक है, तो व्हाट इज पीई इज 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, एंड इफ यू टेक द एलसीएम एज 24, दिस विल बी 3 + 4 + 6 विच इज इक्वल टू 13/24। तो ई यूनियन एफ यूनियन जी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 13/24 से तो कम आएगी, उससे भी एक्चुअली में और छोटी आएगी, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पर अगर कोई चीज ये कहा जाता है कि दैट इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली दैट आंसर वुड हैव बीन करेक्ट कि ई यूनियन एफ यूनियन जी किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है तो वो आंसर तो सही होता ही है। तो यहाँ पर 13/24 दैट विल बी करेक्ट। नाउ डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात हम यहां पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सपोज ये ई एफ और जी है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे को दे रखी थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक मिनट में देख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाज गिवन टू यू एज 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वाज गिवन टू यू एज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वाज गिवन टू यू एज 1/4, और ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी आपको 1/10। ठीक है, और आपको यह पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट विल बी उसकी वैल्यू के बारे में पूछा था कि उसकी वैल्यू 5/12 से छोटी होगी या नहीं होगी, यानी कि उसकी बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप देख सकते हो बेसिकली कि अगर मैं जी एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है, जी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, अगर मैं वर्स कम, क्योंकि मैं ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, जो ई एफ और जी के बाहर का हिस्सा है, ठीक है, विच इज नॉट इन ई नॉट इन एफ नॉट इन जी, वो वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी की वैल्यू 1/4 है। लुक एट दिस, अगर मैं एफ को इसका सबसेट ले लूं, ठीक है, एफ को इसका सबसेट ले लूं, तो एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ये 25% है, और एफ की वैल्यू 1/6 मतलब 16.66% है। ठीक है, तो लेट अस से ये एफ है, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी इज 1/6, जी द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज 1/4। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 1/8 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/8 है, और इनके आपस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 है, ठीक है, 10% है। तो अगर आप यहां पर जी को इस तरह से ले लें, ठीक है, कि उनका कॉमन ओवरलैप जो है वो 10% है, तो और जी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो 12.5% है। तो यू कैन सी दैट अगर मैं इस तरह का ई ले लूं, ठीक है, सच दैट 10% यहां पर हो और 2.5% लेटर से यहां पर है। ठीक है, तो इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन विच आर गिवन इन दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी यहां पर 10% है। ठीक है, और ये सब चीजें हैं। नाउ इन दिस केस दिस probability of E complement intersection F complement intersection G complement will be maximum, and you can see because this is 1/4, the maximum value of that can go up to is 3/4. So therefore probability of E complement intersection F complement intersection G complement
ठीक है, विल बी लेस देन और इक्वल टू 3/4, जो कि इन्होंने दिया हुआ है 5/12, तो ऑब्वियसली वो सही नहीं है क्योंकि वैल्यू 3/4 से छोटी है। जैसे कि अगर यही ज्योमेट्री मैं ले लूं, इसी तरह का अगर मैं डायग्राम ले लूं, तो उस केस में आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट विल बी 3/4, ऑब्वियसली दैट इज नॉट लेस देन 5/12. तो therefore the correct answer of this question will be, as we had mentioned, is A, B and C but not D. That will be the answers. Okay, so again we landed to matrix. ठीक है, एक और सवाल आ गया मैट्रिक्स का यहाँ पर। तो काफ़ी, जैसे मैं हमेशा ही बोलता रहा हूँ कि मैट्रिक्स, डेफिनेट इंटीग्रल, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आईआईटी में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। और मेरे ख्याल से इस साल, शायद मैंने अभी ओवरऑल एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से इनका वेटेज और ज़्यादा हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ था कि फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M इज डिनोट द डिटर्मिनेंट, I is 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और E और F ये दो मैट्रिक्स दे रखी है, सच दैट I माइनस EF इज इन्वर्टिबल एंड G इज I माइनस EF का इनवर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि I माइनस EF इंटू G विल बी इक्वल टू G इंटू I माइनस EF। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि G और उसका जो मल्टीपल है ना, G इज I माइनस EF का इनवर्स, तो I माइनस EF इंटू G विल बी सेम एज G इंटू I माइनस EF, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से अगर हम देखें तो G माइनस EFG विल बी इक्वल टू G माइनस GEF एंड दैट विल गिव यू, अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे को इससे ऑप्शन C मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन C जो है वो यहां पर सही है कि EFG इक्वल्स टू GEF है। नाउ लेट अस कम टू ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन B में हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो दिस इज I माइनस FE, ठीक है, I माइनस FE प्लस FGE एंड माइनस FEFGE। इसको हमें बताना है कि यह I के बराबर है या नहीं है। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं। नाउ EFG हमने देख लिया कि EFG इज सेम एज GEF, तो इसको लिखा जा सकता है I माइनस FE प्लस FGE माइनस FGEFE। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, और इसको हम लिख सकते हैं I माइनस FE। ठीक है, और इसको व्हाट एम आई राइटिंग इज FG टाइम्स I माइनस EF इंटू E। ठीक है, FG कॉमन ले लिया मैंने, और E जो बाद में, उसको बाद में लिखा। आप देख सकते हो कि इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ G इज I माइनस EF का इनवर्स, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज नथिंग बट I, एंड व्हाट विल आई गेट इज I माइनस FE प्लस F इंटू E, क्योंकि ये तो I हो जाएगा, विच इज सेम एज इक्वल टू I, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन द राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर ऑप्शन B इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन B भी सही आ गया। अच्छा, यहां से हमारे को ये भी देखना है कि FE और इसके बीच में ये चीज कर सकते हैं, नहीं कर, तो हमने ये देख लिया कि दिस इज इक्वल टू I। बेसिकली वी कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू I, है ना, वो चीज कोई हम लेकर आए और ये चीज I के बराबर है। तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, I कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट विल आई गेट इज FE इज इक्वल टू FGE माइनस FGEFE। ठीक है, मैंने I को कैंसिल कर दिया और FE को उधर ले गया, तो ये आ गया, और इससे वी कैन सी दैट FE इज इक्वल टू FGE इंटू I माइनस FE। ठीक है, और अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, ठीक है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, तो यू कैन सी दैट मॉड ऑफ FE इज इक्वल टू मॉड ऑफ I माइनस FE इंटू मॉड ऑफ FGE। तो यहां पर इफ यू टेक डिटर्मिनेंट तो इट विल इंप्लाई ऑप्शन नंबर A इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें A, B और C सही होंगे। अगर आप D को एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो D में भी ऐसा ही एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, D में भी ऐसा ही एक्सपेंशन आएगा, लेकिन वहां पर यहां पर जो वैल्यू है वो I माइनस FE माइनस FE आ जाएगी, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू I बिकॉज दे विल नॉट कैंसिल आउट। तो देयरफॉर D ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी A, B एंड C। Okay, so now we come to question number 15th of paper 1, in which was basically based on inverse trigonometry functions and partly on limits etc. ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि सारे ऑप्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए हम जानते हैं कि वी कैन राइट cot इनवर्स x एज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, तो यहां से अगर आप SNX को देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ tan इनवर्स ऑफ
that can be written as k plus 1x minus tan inverse of kx. Is that clear? ठीक है, it can be written like this. और अगर हम इसको सम करें for k equal to 1 to n, then it will be equal to tan inverse of n plus 1x minus tan inverse of x. ओके ठीक है, तो इन्होंने S10 के बारे में पूछा है, तो आप देख सकते हो यहां से जो ऑप्शन ए है S10x will be equal to tan inverse of 11x minus tan inverse x, and that is equal to tan inverse of 10x upon 1 plus 11x square. ठीक है, जिसको कि हम लिख सकते हैं cot inverse of 1 plus 11x square upon 10x, और हम ये भी जानते हैं एक वेल नोन आइडेंटिटी cot inverse lambda plus tan inverse lambda is pi by 2, तो this can be written as pi by 2 minus tan inverse of 1 plus 11x square divided by 10x, which is in the option 1. okay, so that gives the option number A. ठीक है, अच्छा B के लिए अगर हम यहां पर देखें तो SNX, ठीक है, तो यहां पर B में हमने ये देख लिया कि SNX is nothing but tan inverse of n plus 1x minus tan inverse of x. ठीक है, और B में उन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन B में कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cot of SNX क्या होगा. ठीक है, cot of SNX की लिमिट क्या होगी ये हमें निकालना है. तो यहां पे यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू cot of SNX, तो मैं उसको लिख सकता हूं tan inverse of NX अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, और क्योंकि x पॉजिटिव है n भी पॉजिटिव है यहां पर, ठीक है, n टेंड टू इंफिनिटी हो रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन nx. और इसकी अगर हम लिमिट निकालें व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तो डोमिनेटिंग टर्म ऊपर में हो जाएगी nx स्क्वायर, एक तरह से ऊपर नीचे n से डिवाइड कर लो. ठीक है, तो यू कैन सी दैट लिमिट ऑफ दिस व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट विल बी नथिंग बट इक्वल टू x. ठीक है, तो यही उन्होंने सेकंड ऑप्शन में दिया था यहां पर. तो यू कैन सी दैट सेकंड ऑप्शन जो cot of SNX is equal to x for all x greater than 0, that will also be correct. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, जो कि उन्होंने दिया है कि S3x इक्वल टू पाई बाई 4 हैज सॉल्यूशंस. ठीक है, यही दिया है ना उन्होंने कि S3x इक्वल टू पाई बाई 4 हैज अ रूट इन 0 टू इनफाइनाइट. तो S3x क्या होगा अगर यहां पर आप वर्कआउट करो, तो S3x इज इक्वल टू tan inverse of what 4x minus tan inverse x, and this equal to pi by 4 has a solution or not for x greater than 0. That is what we have to work out. तो ये आसानी से आप देख सकते हो कि this is tan inverse of a minus b, यानी कि 3x upon 1 plus 4x square equal to pi by 4, which will mean that 1 plus 4x square equal to 3x का हमें solution देखना है कि इसका solution exist करेगा या नहीं करेगा. और यहां पर अगर आप देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसका नो रूट विल बी देयर विल बी नो रूट ऑफ दिस. तो देयरफॉर ये जो ऑप्शन है कि इक्वेशन दिस हैज अ रूट इन 0 टू इनफाइनाइट, वो एक गलत ऑप्शन होगा. अच्छा, डी ऑप्शन जो है वो बी से आ जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया कि cot of SNX इक्वल टू x होता है व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो tan of SNX, ठीक है, अगर मैं n टेंडिंग टू n को एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लूं तो tan of SNX ये आप देख सकते हो कि दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x की वैल्यू बाउंडेड नहीं हो सकती, अपर बाउंड नहीं हो सकती. 1 अपॉन x अगर हम x को बहुत छोटा कर दें तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है. तो ये कहना कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0 विल नॉट बी करेक्ट, क्योंकि आप n को अगर बहुत बड़ा ले जाओगे तो हमने देखा है कि सेकेंड ऑप्शन में cot की वैल्यू x होती है, तो tan की वैल्यू 1 बाई x होगी, और x अगर हम बहुत छोटी वैल्यू ले लें तो 1 बाई x की वैल्यू इनफाइनाइट तक भी जा सकती है. तो देयरफॉर वी कैन से दैट आउट ऑफ दीज ऑप्शंस A and B will be the correct one. So question number 16 was based on complex numbers. We had got actually two problems of complex number in paper 1. One that was on Z1 minus Z2 mod, उसके ऊपर बेस थी. ये वाली प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे और पार्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है. तो इन्होंने दिया है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट W वगैरह वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस अल्फा अपॉन Z प्लस बीटा, ये सॉरी ये यहाँ पर गलत है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी है ना, इक्वल टू पाई बाई 4 है. और ऑर्डर्ड पेयर लाइज ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इज दिस क्लियर?
तो यहां पर अगर हम उस सर्किल को देखें, उस सर्किल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो उस सर्किल का डायग्राम किस तरह का बनेगा कि उसका सेंटर जो है वो -5/2, 3/2 पर है ना, -5/2, 3/2 पर उसका सेंटर है, ठीक, और वो ओरिजिन उसके बाहर रहेगा, तो वो कुछ इस तरह का सर्किल बनेगा। कुछ इस तरह का सर्किल बनेगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को वो आप देख सकते हो कि इट विल कट द एक्स एक्सिस बिकॉज द रेडियस विल बी बिगर। नाउ यहां पर z प्लस अल्फा और अल्फा और बीटा जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स, ठीक है, यानी कि वो रियल नंबर्स हैं और z प्लस अल्फा और z प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू π/4 और उसका जो लोकस है द ऑर्डर पेयर लाइज ऑन दिस सर्किल। तो यहां पर ये आप देख सकते हो कि अल्फा और बीटा, अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा, ये सेंटर है उसका -5/2, 3/2, अगर हम यहां से इसको देखें कि वो एक्स एक्सिस वो कहां पर कट कर रहा है, जहां y इक्वल टू 0 होगा, यू कैन सी दैट दिस पॉइंट इज -1 एंड दिस पॉइंट इज -4, ओके, एंड इट कैन बी इजीली वर्कड आउट दैट दिस एंगल विल बी 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि वो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस जो है वो 3/2 है और ये डिस्टेंस भी 3/2 है, तो ये 45 डिग्री हो गया एंड देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड बाय दिस, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑन एनी ऑफ दिस विल बी π/4, ठीक है। तो हमें ये z का लोकस ये दिया हुआ है कि z का लोकस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा, बेसिकली वो क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा इज इक्वल टू π/4, यानी कि z माइनस अल्फा वेक्टर और z माइनस बीटा वेक्टर के बीच में एंगल π/4 है, तो ये एक तरह से पॉइंट जो है वो माइनस अल्फा होगा, ये माइनस बीटा होगा और इसका लोकस जो है वो ये सर्किल आएगा। तो यहां से यू कैन कंपेयर दैट अल्फा विल बी इक्वल टू 1 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 4 and from there you can look at the options that alpha equal to 1 and beta equal to 4, the option D and B, both of them will be correct and that is what is given in the answer. Okay, this was a very conventional kind of problem involving modulus functions, ठीक है, ये आसानी से आप कर सकते हो। इसमें बेसिकली मॉड को आप डिफाइन करो, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो कि कितने इसके सॉल्यूशंस होंगे, या आप इसमें मॉड को डिफाइन कर दो। तो लेट अस से जैसे कि अगर हम ये कहें कि x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उस केस में मॉड विल ओपन एज पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम 3x² - 4x² प्लस 4 प्लस x - 1 इक्वल्स टू 0, विच विल गिव यू x² - x -3 इक्वल टू 0, या x की वैल्यू यहां से अगर आप देखो तो 1 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 आ जाएगी। और अगर हम यहां देखें तो 1 प्लस √13/2 भी 1 से बड़ा है और 1 माइनस √13 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 3.6 के आसपास होगी। तो 1 माइनस 3.6 इज -2.6 अपॉन 2, तो वो -1.3 होगा, विच इज ऑल्सो सेटिस्फाई mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये दोनों सॉल्यूशंस यहां पर एक्सेप्ट होंगे। लाइकवाइज अगर हम ये केस ले कि x² - 1 लेस देन 0 है, यानी कि mod x इज लेस देन 1, इन दैट केस ये नेगेटिव की तरफ खुलेगा और ये क्या हो जाएगा 3x², ओके, x² - 1 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4x² प्लस x - 1 इक्वल टू 0, विच विल गिव यू 7x² प्लस x - 5 इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac, तो व्हाट दैट विल बिकम इज 141 अपॉन 14, ठीक है। अब 141 का अंडर रूट जो है वो 12 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, सपोज 11.9 मान लें हम, तो 11.9 माइनस 1 इज 10.9 अपॉन 14, तो दैट विल बी अ फ्रैक्शन, और 11.9 प्लस 1 is 12.9 upon 14, so that is also a fraction. So both these roots will also be acceptable and therefore overall there will be 4 number of roots of this particular equation. So the correct answer of this will be 4. Okay, this was again a very common type of problem, just formula fitting was there, जो कि solution of triangle से थी, cot A plus cot C, ठीक है। तो हम जानते हैं कि cot A is cos A upon sin A, तो इसको लिखा जा सकता है cos A sin C plus cos C sin A डिवाइडेड बाई cos B अपॉन sin B इंटू sin A sin C, ठीक है। मैंने sin cos में इसको सबको चेंज कर दिया और इसको cos A sin C वी नो इज नथिंग बट sin of A plus C, which can be written as sin B,
तो ये ओवरऑल हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए साइन सी कॉस बी, ठीक है। नाउ साइन स्क्वायर बी की वैल्यू अगर मैं यहां साइन रूल यूज करूं तो यू कैन सी दैट दैट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर अपॉन ए सी कॉस बी, ठीक है। और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे को दे रखी है, बी स्क्वायर इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ए सी कॉस बी विल बिकम, क्योंकि कॉस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2ac, तो दिस विल बी इनटू 2, so what that will become is 16 into 2 divided by a square, तो a square will be 9, c square will be 23 and b square is what, 16, so 32 minus 16 is 16 and therefore the net answer of this will be 2. So that is the answer to this particular question. So that was again an easy one problem where the answer was 2. Okay, so vectors as we know is an important topic and is scoring topic also. This problem was from the vectors and you can see that इसमें जो डेटा दिया हुआ है उससे हमें दिख रहा है यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स यूवीडब्ल्यू, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होता है बॉक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू का मॉड, और ये हमें दिया हुआ है √2, ठीक है। और हमें मॉड ऑफ 3u प्लस 5v की वैल्यू निकालनी है। नाउ बॉक्स यूवीडब्ल्यू को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। यू नो दैट वन वे टू फाइंड आउट बॉक्स यूवीडब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू u डॉट v, u डॉट w, ठीक है, v डॉट u, v डॉट v, v डॉट w एंड w डॉट u, w डॉट v एंड w डॉट w, ठीक है। इस तरह से हम यहां पर बॉक्स यूवी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ ये हमारे को ऑलरेडी दे रखी है √2, अगर मैं u डॉट v को थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लूं, लेट u डॉट v इक्वल टू लैम्डा, तो यहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा कि 2 इक्वल्स टू u डॉट u, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, v और u यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये 1 हो जाएगा, इसको लैम्डा हमने मान लिया था। और u डॉट w, इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है, u डॉट w इज 1, सिमिलरली v डॉट u ये लैम्डा है, v डॉट v इज 1, v डॉट w की वैल्यू भी हमें 1 दे रखी है, और यहां पे भी ये 1 1 और w डॉट w की वैल्यू जो है वो हमें 4 दे रखी है। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो व्हाट विल आई गेट हियर, दैट 2 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 4 लैम्डा माइनस 1 एंड प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, ठीक है, जिससे कि हमारे को क्या मिल जाएगा यहां पर कि 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा, हाँ सॉरी माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट विल आई गेट इज 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से 0 और हाफ आ जाएगी। लैम्डा हमने किसको माना था, u डॉट v को, और ये दिया हुआ है कि u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, u एंड v आर यूनिट वेक्टर विच आर नॉट परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जो है वो हाफ आएगी, यानी कि u डॉट v वी हैव गॉट इज इक्वल टू हाफ। नाउ हमें मॉड ऑफ 3u प्लस 5v निकालना है, तो मॉड ऑफ 3u प्लस 5v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9u स्क्वायर प्लस 25v स्क्वायर प्लस 30 टाइम्स u डॉट v, और उसको अगर आप वैल्यूज वगैरह पुट कर दो तो यू कैन सी दैट दिस आंसर विल बी इक्वल टू 7, विच इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 7।